Dear students, good morning. Now in this chapter, what is federalism? And your third topic is types of federalism. The first is coming together federation and second is holding together federation. First, we have to discuss about the coming together federation. You should understand the name defines something. Coming together federation. Coming independent states coming together on their own to form a bigger unit, and then it makes a coming together federation like USA. You just look here, United States of America. United States of America, this is USA. The states make a federation. Then this country's name is United. United means these states are united or United States, and then it makes a country named United States of America, and this is the example of coming together federation. And this federation is still running with their own administration, and then everything is well and maintained till the time also. And you can see as you know that USA is the superpower of the world. By pulling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. Sovereignty means, you know what is the meaning of sovereignty? Sovereignty means Samprabhuta. India is a sovereign country or not? As you know that India is a sovereign. And then sovereignty, Samprabhuta, when a country takes its own decision without any pressure of foreign country or without any outside powers, then that country is sovereign. So, this is the matter of sovereignty belongs to a country. But if we are sovereign, citizens are sovereign, or by pulling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. If we are sovereign people, then we are free to do everything but according to law in a legal way, not in illegal. And then our identity is, and retaining identity and our security is constitutionally guaranteed. States usually have equal power and are strong in the federations like USA, Switzerland and Australia. Look here. States have equal power. There is a difference between coming together federation and holding together federation. In coming together federation, states are more powerful. States have equal power. But when I am going to comparison with the coming together federation and holding together federation, then I think in coming together federation, states have more power than holding together federation. Because of in coming together federation, states are free with their own identity and own powers. But in holding together federation's context, states have power to maintain their own identity, security, justice and everything. But in sometimes in holding together federation, those countries which belongs to holding together federation, you will find states have power, but sometimes they have to maintain the system of central. But where we will discuss about it. And now we are here
states usually have equal power and are strong in the federation. States usually have equal power. In the United States of America, like Washington DC of Columbia or any other states, every states have equal power. Every states have separate jurisdiction, legislature, taxation, and in holding together federation, large country decides to divide its power between the constituent states and national government. A large country like India decides to divide India. In context to India, you will have to think here. A large country like India or Spain and Belgium, but they are a small country. India is a large country. Holding together means to hold. And then name is the definition of this federation. A large country decides to divide its power between the constituent states and national government. What is the meaning of national government? That means central government. Central government is known as state government. Yes, central government is known as national government. And then power is equally distributed between state and national government. But sometimes, whenever any dispute arises between central and state, then the states have to follow the guidelines which is provided by the central government. This is the main difference between coming together federation and holding together federation. And the example of holding together federation is India, Spain and Belgium. देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो आकर एक देश का निर्माण करते हैं और वो एक राष्ट्र बनाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने देखा यूनाइटेड, फिर स्टेट्स ये हो गए, एंड देन एक कंट्री का निर्माण हुआ, उसका नाम हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ सबको संप्रभुता, सबकी अपनी पहचान है। एक बात में ज़रा हमको कन्फ्यूज़न है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि अमेरिका में दो तरह की नागरिकता दी जाती है, एक उसके स्टेट्स की, एक उसके कंट्री की। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की भी नागरिकता है, और एक आपको देश के अंदर की नागरिकता है बाय पुलिंग सॉवरेनिटी। और ये संप्रभुता, आपकी पहचान और आपकी सुरक्षा को हमेशा जो है बचा के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और सिक्योरिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, उसको किसी भी तरह से आघात नहीं पहुंचा सकता है। एंड देन यहाँ पे राज्यों को इक्वल पावर होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे राज्य सेंट्रल की बात मानने के लिए मजबूर नहीं है। यहाँ यही फ़र्क है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में राज्यों को ज़्यादा पावर मिलता है, किसकी अपेक्षा? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की अपेक्षा। यहाँ राज्य जिस तरह से चाहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, अमेरिका में आर्म्स लीगल है। वहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे फ्रिज का दुकान है या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल का दुकान है, तो अमेरिका में आर्म्स का दुकान है। वहाँ लोग मार्केट जाते हैं तो आर्म्स लेके जाते हैं। स्टेट्स का कानून है कि आर्म्स लीगल है। अब बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे, उसने कितनी बार अपने राष्ट्रपति काल में सोचा, प्रेसिडेंशियल पीरियड में, कि इस कानून को हम इलीगल कर दें, लेकिन वो नहीं कर पाए। राष्ट्रपति होकर के नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ स्टेट्स ने इसकी मान्यता नहीं दी। स्टेट्स ने कहा कि आर्म्स हमारे यहाँ लीगल रहेगा, और वो आज भी वहाँ पे लीगल है। इसीलिए वहाँ पे एक चीज़ क्या है कि स्टेट्स को ज़्यादा पावर किसी स्टेट्स को नहीं है, लेकिन सभी स्टेट्स को इक्वल पावर है। उसके डेवलपमेंट के लिए किया गया है, उसके सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि स्टेट्स ज़्यादा अपना तरक्की कर सकें। इसलिए लेजिस्लेशन
जुरिस्डिक्शन और टैक्सेशन, ये तीनों डिपार्टमेंट के ऑल इन ऑल स्टेट्स होते हैं और उनको अपने तरीके से सब कुछ करने की छूट है। लेकिन ऐसे फेडरेशंस में हमने आपसे कहा कि कभी कभी ऐसी भी स्थिति पैदा होती है जो एक समस्या का कारण बनती है, जैसे अमेरिका में आर्म्स का लीगल होना एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। अब देखिए आपके सामने एक बात है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब नाम से ही आप समझ सकते होंगे, होल्ड, पकड़ के रखना। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्ड से ही होल्डिंग बना है, कम से कमिंग बना है। तो होल्डिंग टुगेदर साथ, फेडरेशन संघ, यानी साथ चलने की बात है, तो इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। हालांकि इसमें कुछ यूनिटरी सिस्टम भी है, कहीं ना कहीं ये यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है। किस तरह से, उसको अब हम लोग देखेंगे। देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बहुत बड़ा देश, जैसे भारत जैसा देश, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में हमने स्टेट्स पहले बनाया था, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हम कंट्री पहले बनाएंगे, उसके बाद अंदर में स्टेट्स को दर्शाएंगे। ये सारे स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स मिलकर के एक कंट्री का निर्माण करते हैं, उसको इंडिया कहते हैं। और वो ये सेंट्रल है और ये स्टेट, और यहाँ एप्लीकेबल जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। लेकिन एक बात है कि ऐसे फेडरेशन में एक बहुत बड़ा देश अपने शक्तियों का बंटवारा तो अपने संवैधानिक प्रणालियों में और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में कर देता है संविधान के तहत, लेकिन यहाँ पे राज्यों को उतना ज़्यादा अधिकार नहीं मिलता है जितने अधिकार की उम्मीद राज्य करते हैं। इसके पीछे एक कारण यह है कि इसमें एक शब्द छुपा हुआ है कि समटाइम्स इंडिया बिकम्स द यूनिटरी, इंडिया फॉलो द यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी मीन्स ही होता है कि हम किसी चीज़ को दबाव डाल के बनाते हैं, हालांकि भारत के संविधान में कहीं भी यूनिटरी सिस्टम लिखा हुआ नहीं, लेकिन यूनिटरी का मतलब यही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो राज्य है, राज्य का टैक्सेशन, लेजिस्लेशन, जुरिस्डिक्शन सब कुछ ठीक है, सॉवरेनिटी भी है, सब कुछ है। लेकिन एक समस्या ये आती है कि जब भी कभी सेंट्रल और स्टेट में कोई पावर को लेके कोई डिस्प्यूट होगा, तो जो सेंट्रल कहेगा वो स्टेट को मानना होगा। बस यही फ़र्क है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड सम स्पेशल पावर्स। खैर तो स्पेशल पावर्स की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स। यहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं स्टेट्स, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा पावर नहीं रहेगा तो वो स्टेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे एक रीज़न है कि आज़ादी के बाद भारत में जिस तरह से विघटनकारी शक्तियों ने अपना राज्य के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया, जिस तरह से अलगाववाद की राजनीति पंजाब में, कश्मीर में या और सब जगहों में शुरू हो गई, उस समय संविधान बनने के बाद लोगों को इस बात का खतरा लगने लगा कि हो सकता है कि हम स्टेट को ज़्यादा पावर देंगे तो स्टेट कल कहे कि हम अलग देश बना लेंगे, महाराष्ट्र अलग देश हो जाएगा, दिल्ली गुजरात अलग देश हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे स्टेट्स को ज़्यादा पावर नहीं दिया गया और सेंट्रल के गाइडलाइन में स्टेट को चलने के लिए कहा गया, क्योंकि छोटा देश नहीं है, छोटी आबादी भी नहीं है। अमेरिका की आबादी 37 करोड़ है तो इंडिया की आबादी 137 करोड़ है। इसीलिए इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बात है कि सेंट्रल के गाइडलाइन के अनुसार स्टेट को चलना है। स्टेट्स कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, अपनी आर्मी नहीं रख सकता है, आर्मी भी सेंट्रल के गाइडलाइन से ही आएगी। ऐसा नहीं है
कि आप ऐसा नहीं है कि आप आर्मी रखें और कल सेंट्रल की सेना से लग जाएं और सेंट्रल की आर्मी के साथ जब आपकी लड़ाई हो तो देश का विघटन हो जाए। तो इसीलिए सेंट्रल को यहाँ पे ज़्यादा पावर दिया गया है स्टेट्स के बनिस्बत, और स्टेट्स उसको इस तरह से सेंट्रल को ज़्यादा पावर दिया गया कि देश का विघटन न हो। इसीलिए यहाँ पे इस बात को कहा गया है कि स्टेट्स, एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने आपको कहा भी था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अन इक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड सम स्पेशल पावर्स, एंड एग्जाम्पल में इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। And then this topic is going to be completed. Okay, thank you.